آج دنیا میں 3 ایسے شہر ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسلمان ان شہروں کو فتح اللہ اکبر۔ پہلا شہر مکہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح کیا۔ دوسرا شہر جروسلم، جسے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اور تیسرا شہر اس زمانے کی سپر پاور دا گریٹ رومن ایمپائر کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اب مکہ اور جروسلم تو مسلمانوں نے پہلے 10 سالوں میں فتح کر لیے، لیکن یہ تیسرا شہر اگلے 800 سال تک بہت کوشش کرنے کے بعد مسلمان فتح نہیں کر سکے۔ 800 سال بعد آخر ایک مسلمان بادشاہ نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 21 سال تھی، اور اس بادشاہ کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کی وہ فوج جو سب سے پہلے رومن بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گی، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد مسلمانوں نے رومن ایمپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل پر 5 بڑے حملے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی فوجوں نے رومن ایمپائر پر حملہ کر دیا، اور آخر خلیفہ عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے رومن اور پرشین ایمپائر کو کرش کر دیا۔ اور حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے پھیلی کہ صرف 10 سالوں کے اندر مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ خلافت راشدہ صرف 30 سالوں میں مدینہ سے کانسٹینٹینوپل کے اتنے قریب پہنچ چکی تھی جس سے آگے بس تھوڑا سا اور راستہ تھا، لیکن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں 800 سال لگے۔ اس بات سے اندازہ لگا ہے کہ خلافت راشدہ کی طاقت کیسی تھی۔ آخر 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے نئے لیڈر حضرت معاویہ بنے، اور لیڈر بننے کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی طاقت بڑھنے لگی، انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کی فوجوں کو یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی فوج کانسٹینٹینوپل پر حملے کے لیے روانہ ہوئی، اور اس فوج کے جنرل کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس فوج میں شامل ہوئے، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید کے بیٹے نے کئی دن تک کانسٹینٹینوپل پر حملے کیے، لیکن آخر بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکے، اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور فوج نے بھی حملہ کیا، لیکن وہ بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر کئی حملوں کے بعد مسلمانوں کے لیڈر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بنانے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ پوری ایمپائر سے لوگ اس فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ اتنی بڑی فوج تھی کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہوئے، جیسے کہ خلیفہ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر،
اور ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ. اور جیسے ہی مسلمانوں کی یہ بڑی فوج تیار ہوئی، حضرت معاویہ نے اس پوری فوج کا آرمی چیف اپنے 24 سال کے بیٹے یزید کو بنایا، جس کے بعد یزید یہ پوری فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی طرف روانہ ہوا. اس فوج میں کچھ صحابہ اس بات سے بالکل خوش نہیں تھے کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے یزید جیسا آدمی اس پوری فوج کا آرمی چیف تھا، کیونکہ یزید نے اس سے پہلے کوئی بھی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی اور اس کے پاس جنگوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن پھر بھی ان صحابہ نے آخر یہ بات ایکسپٹ کر لی اور کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے. یزید مسلمانوں کی فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی دیوار کے سامنے پہنچے اور یہاں پہنچتے ہی مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کانسٹینٹینوپل کوئی عام شہر نہیں تھا. اس شہر کے سامنے ایک نہیں بلکہ 3 لمبی لمبی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے سامنے ایک بہت بڑی خندق بنی ہوئی تھی جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا. اس شہر پر صرف ایک ہی سائڈ سے حملہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ باقی تینوں سائڈز پر صرف سمندر تھا، جس کی وجہ سے یہ شہر کانسٹینٹینوپل ایک اتنا سیکیور شہر تھا کہ پچھلے کئی صدیوں سے یہ شہر رومن امپائر سے کوئی نہیں چھین سکا تھا. تو اب جیسے ہی مسلمان اس شہر کے سامنے پہنچے، یزید نے حملے کا حکم دیا اور جنگ شروع ہوئی. کہا جاتا ہے انہی حملوں کے دوران اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے اور ان کی زندگی کے آخری دن قریب آئے. تو مسلمان ان سے آخری بار ملنے کے لیے جمع ہوئے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خبردار، میرے مرنے کے بعد مجھے یہاں مت دفنانا، بلکہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی کو اٹھا کر شہر کی طرف آگے بڑھنا اور جتنا ہو سکے مجھے اس شہر کے قریب دفنانا. جس کے بعد مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی وہ فوت ہوئے، مسلمان آدھی رات کو رات کے اندھیرے میں ان کی باڈی کو لے کر آگے بڑھے اور بالکل شہر کی دیوار کے پاس پہنچ کر وہیں پر انہیں دفنا دیا. ابو ایوب انصاری کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ یہ وہ صحابی تھے کہ اس سے بہت سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہا کرتے تھے. اور اب اسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے رومن امپائر کے کیپٹل کے بالکل قریب دفنا دیا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی، اور آخر بہت کوشش کے بعد بھی یزید یہ شہر فتح نہیں کر سکا، اور آخر پوری فوج کو لے کر یزید یہاں سے واپس چلا گیا. آخر اتنی کوششوں کے بعد بھی جب یہ شہر کانسٹینٹینوپل فتح نہیں ہو سکا، آخر حضرت معاویہ کو سمجھ آئی کہ یہ شہر کبھی بھی زمین سے فتح نہیں ہو سکتا، اور اگر ہمیں یہ شہر فتح کرنا ہے تو ہمیں زمین سے نہیں بلکہ سمندر سے حملہ کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ حضرت معاویہ نے مسلمانوں کی پوری نیوی کو ریڈی ہونے کا حکم دیا، اور اس کے اگلے ہی سال مسلمانوں کی نیوی رومن امپائر کے کیپٹل کی طرف روانہ ہوئی. یہ وہی نیوی تھی جسے اس سے بہت سال پہلے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی نیوی کانسٹینٹینوپل کے سامنے پہنچی، ایک بار پھر مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس سمندر کی سائٹ پر بھی رومن امپائر نے لمبی لمبی دیواریں بنائی تھی، اور مسلمانوں کی کشتیاں ان دیواروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. مطلب کانسٹینٹینوپل ایک ایسا شہر تھا جسے نہ زمین سے فتح کیا جا سکتا تھا اور نہ سمندر سے. کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، جس کا نام تھا دا گولڈن ہارن. نہیں، یہ والا نہیں،
गोल्डन हॉर्न कॉन्स्टेंटिनोपल के पास ही एक छोटी सी नहर थी जहां से मुसलमान आसानी से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस सकते थे। मतलब जो भी इस गोल्डन हॉर्न तक पहुंच गया तो समझो उसने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लिया। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, अचानक मुसलमानों की सारी कश्तियां रुक गई, क्योंकि रोमन एम्पायर ने इस गोल्डन हॉर्न के सामने एक साइड से दूसरी साइड तक एक बहुत बड़ी चेन लगाई हुई थी और इस चेन के पीछे रोमन एम्पायर की पूरी नेवी खड़ी थी। जब भी मुसलमान इस चेन को तोड़ने के लिए आगे जाते थे, रोमन्स उन्हें अपनी तीरों से पीछे भगा देते थे। इसी तरह मुसलमानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर मुसलमानों को समझ आ गई कि यह शहर इस तरह फतह नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों ने समंदर से इस शहर को घेर लिया और मुसलमानों की एक नई फौज ने जमीन से भी इस शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब मुसलमानों का प्लान यह था कि हम इसी तरह शहर को घेर कर बैठे रहेंगे और जब शहर के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, रोमन्स खुद शहर से बाहर निकलेंगे और तब हम इन्हें खत्म कर देंगे। तो अब मुसलमान आराम से शहर को घेर कर बैठ गए और मुसलमानों का यह प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, जिसे देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह पहली बार डरने लगा। और जब उसे भागने का और कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर रोमन बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान किया कि जो भी हमें इन मुसलमानों से बचाने के लिए एक नया और खतरनाक हथियार वेपन बनाएगा, मैं उसे अनलिमिटेड पैसा दूंगा। तो अब जब मुसलमान बाहर बैठे हुए थे, शहर के अंदर हर तरफ बादशाह के ऐलान के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए और आखिर बहुत कोशिश के बाद रोमन बादशाह को एक ऐसी चीज मिली जिसका इससे पहले पूरी दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस नई टेक्नोलॉजी का नाम था ग्रीक फायर। अचानक एक दिन जब मुसलमानों की कश्तियां शहर के बाहर आराम से खड़ी थी और मुसलमान अंदर एंजॉय कर रहे थे, अचानक मुसलमानों ने गौर से देखा कि रोमन्स पहली बार शहर के सामने लगी हुई चेन खोल रहे हैं। और आखिर जैसे ही सारी चेन गिर गई, मुसलमान ये देखकर खुश हुए और मुसलमान फुल स्पीड गोल्डन हॉर्न की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की कश्तियां रोमन कश्तियों के बिल्कुल करीब पहुंची, रोमन कश्तियों के फ्रंट पर एक अजीब सी मशीन लगी हुई थी और जैसे ही मुसलमान उनके करीब हुए, रोमन कश्तियों से आवाजें आने लगी। रोमन्स ने अपनी ग्रीक फायर वाली मशीन खोल दी और कुछ ही मिनट्स में मुसलमानों की ऑलमोस्ट सारी कश्तियां आग से भड़कने लगी। कहा जाता है इससे पहले एक जगह पर इतनी ज्यादा आग किसी ने नहीं देखी थी। मुसलमान अपनी कश्तियों को बचाने के लिए समंदर से पानी उठाकर ये आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोमन्स ने ये आग एक ऐसे केमिकल से बनाई थी कि ये आग पानी से बुझने के बजाय और भी ज्यादा भड़कने लगती थी। एक आदमी कहता है इस आग की आवाज इतनी खौफनाक थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में बिजली गरज रही हो। इस आग से मुसलमानों की ज्यादातर कश्तियां जलकर राख हो गई और हजारों मुसलमान शहीद हो गए। कहा जाता है यहां पर मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी नेवी तबाह हो चुकी थी और सिर्फ कुछ कश्तियां अपनी जान बचाकर यहां से वापस चली गई।
इसी के साथ रोमन्स ने मुसलमानों की जमीनी फौज पर भी हमला किया और वहां भी हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस तरह मुसलमानों की फौज कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किए बगैर वापस चली गई। ये हार इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है इसके बाद पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, क्योंकि पिछले 50 सालों में ये पहली जंग थी जिसे मुसलमान इस तरह हारे थे। बल्कि इस हार की खबर यहां से बहुत दूर उस जमाने की चाइना की किताबों में भी लिखी गई थी, जो आज तक पड़ी हुई है। ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की उमैया खिलाफत की पहली कोशिश, जो मुसलमान हार गए। और इससे मुसलमान इतना कमजोर हुए कि अगले 40 साल तक मुसलमानों ने दोबारा कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। इस जंग के कुछ ही अरसे बाद हजरत मुआविया इस दुनिया से चले गए और उनके बाद नया बादशाह यजीद बिन मुआविया बना। लेकिन यजीद के आते ही बड़े बड़े सहाबा उसके खिलाफ खड़े हुए और इस तरह मुसलमानों में एक नई सिविल वॉर शुरू हुई। लेकिन एक बार फिर बड़ी बड़ी जंगों के बाद बनु उमैया खानदान ये पूरी सिविल वॉर जीत गए और बनु उमैया खानदान दोबारा पूरी मुसलमान दुनिया पर राज करने लगा। और आखिर 40 साल बाद जब बनु उमैया की ताकत अपनी पीक पर थी, बनु उमैया खानदान के एक नए बादशाह सुलेमान ने दोबारा अपनी पूरी फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और 40 साल के बाद एक बार फिर मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हुई। इस बार ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की इस फौज में 1.5 लाख सोल्जर्स थे। मुसलमानों के पास लंबी लंबी तोपें थी और मुसलमानों की इस फौज में हंड्रेड्स ऑफ कश्तियों के साथ कई 100 जंगी जहाज भी थे। मुसलमानों ने एक बार फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल को सिर्फ और सिर्फ इस गोल्डन हॉर्न के रास्ते से ही फतह किया जा सकता था। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बिल्कुल पहले की तरह अब भी गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल सामने वही चेन लगी हुई थी। एक बार फिर मुसलमानों की नेवी ने इस चेन को क्रॉस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सके। इसी तरह आने वाले कई अरसे तक मुसलमान इस शहर को घेर कर बैठे रहे। लेकिन आखिर मुसलमानों के कैंप्स में बीमारियां फैलने की वजह से हजारों मुसलमान शहीद होने लगे और कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों की ये फौज भी इन बीमारियों से बिल्कुल तबाह हो गई। ये थी मुसलमानों की कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की दूसरी बड़ी कोशिश, जिसमें एक बार फिर मुसलमान बुरी तरह हार गए। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की दूसरी कोशिश भी बुरी तरह फेल हो चुकी थी और कॉन्स्टेंटिनोपल की इस जंग ने उमैया खिलाफत की ताकत को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। इसीलिए इस हार के बाद बनु उमैया कभी भी दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। ये देखकर एक नए खानदान को मौका मिला कि वो आहिस्ता आहिस्ता बनु उमैया की खिलाफत को चैलेंज करे और आहिस्ता आहिस्ता बनु उमैया के खिलाफ हर तरफ बगावतें होने लगी और आखिर बनु उमैया की खिलाफत टूट गई और दुनिया में मुसलमानों की एक नई खिलाफत बनी, जिसका नाम था अब्बासी खिलाफत। अब अब्बासी खिलाफत को अच्छी तरह पता था कि जब भी मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की कोशिश की, मुसलमान हमेशा बुरी तरह हार गए। इसीलिए अब्बासी खिलाफत ने अपनी पूरी खिलाफत में कभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को मुसलमानों के बड़े बड़े बादशाह भी फतह नहीं कर सके। लेकिन आगे जाकर सिर्फ 21 साल के एक लड़के ने यह शहर हमेशा के लिए फतह कर लिया, जिसका नाम था सुल्तान महमद फातेह।
इसी तरह अब्बासी खिलाफत का राज मुसलमानों पर चलता रहा और आखिर जिस तरह हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत भी कमजोर होने लगी और अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई। तो अब मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में टूटने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिसके बाद एक मुसलमान लीडर ऐसा भी आया जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोबारा यूनाइट करने की कोशिश की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और सुल्तान सलाहुद्दीन की वजह से कुछ देर के लिए मुसलमानों को दोबारा ताकत भी मिली, लेकिन जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चले गए, उसके कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों पर एक ऐसा अजाब आया जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस अजाब का नाम था मंगोलों का बादशाह चंगेज खान। चंगेज खान ने मुसलमान दुनिया पर हमला कर दिया। पहले चंगेज खान और फिर हलाकू खान ने मुसलमान दुनिया से ये सारा इलाका छीन लिया और लाखों मुसलमानों को मार डाला। मंगोलों ने मुसलमानों को ऐसा तबाह किया था कि अब ऐसा लगने लगा था कि पहली बार मक्का और मदीना भी मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। और पिछले 600 सालों में पहली बार दुनिया के सुपर पावर मुसलमान नहीं बल्कि मंगोलियन एम्पायर थी। और मुसलमानों की सारी सुपर पावर्स तबाह हो चुकी थी। तो अब जब पूरी मुसलमान दुनिया में हर तरफ मायूसी फैली हुई थी, एक छोटे से मुसलमान कबीले ने तुर्की के इलाके में अपनी छोटी सी एम्पायर बनाई। और इस छोटे से कबीले के सरदार का नाम था अर्थुरुल। अर्थुरुल सबसे पहले अपने छोटे से कबीले को एक स्ट्रॉन्ग कबीला बनाने लगा और छोटे छोटे इलाकों को फतह करने लगा। अर्थुरुल के बाद उसका बेटा इस कबीले का सरदार बना और आगे जाकर इसी बेटे ने अपने इस कबीले को एक छोटी सी एम्पायर में बदल दिया। अर्थुरुल के इस बेटे का नाम था सुल्तान उस्मान। अल्लाहु अकबर। यही नाम उस्मान, जिसे अरबी में उस्मान कहा जाता है। और जब उस जमाने में ये नाम यूरोप पहुंचा, यूरोप में ये नाम ऑटोमन के नाम से मशहूर है। This is the Ottoman Empire. उस्मान की ये छोटी सी एम्पायर आगे जाकर मुसलमानों की दुनिया में आखिरी बड़ी सुपर पावर बनी, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद रखती है। द ग्रेट ऑटोमन A एम्पायर। single family ruled over huge swathes of the world. Allahu Akbar. This is an empire of 1,000,000 square miles. It's a superpower. इसी तरह ये छोटी सी उस्मानिया सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैलने लगी और आखिर उस्मानिया सल्तनत मुसलमानों की ऐसी पहली एम्पायर बनी जिसकी फौजों ने समंदर को क्रॉस करके यूरोप पर हमला किया। और आखिर उस्मानिया सल्तनत के पास इतनी ताकत है कि ऑलमोस्ट 700 साल के बाद उस्मानिया सल्तनत के ही एक बादशाह ने फैसला किया कि अब वो एक बार फिर तीसरी बार मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके उसे फतह करेगा। इस तरह 700 साल के बाद यहां से शुरू होती है मुसलमानों की कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तीसरी कोशिश। उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बयाजिद ने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज जमा की और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने एक बार फिर 700 साल बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। इस बार मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार भी मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल के इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके। लेकिन सुल्तान बयाजिद ने हार नहीं मानी, बल्कि 4 साल तक इसी तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर कर बैठा रहा। लेकिन फिर भी जब ये शहर फतह नहीं हुआ, आखिर सुल्तान बयाजिद अपनी पूरी फौज को लेकर यहां से वापस चला गया। और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तीसरी कोशिश में भी मुसलमान हार गए।
लेकिन इस हार के बाद भी उस्मानिया सल्तनत के बादशाह पीछे नहीं हटे, बल्कि इसके सिर्फ 20 साल बाद इसी सुल्तान बयाज़िद के पोते सुल्तान मुराद ने दोबारा एक बहुत बड़ी फौज जमा करके चौथी बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। चौथी बार मुसलमानों की फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। मुसलमानों ने फिर हमला किया। मुसलमानों की कश्तियां फिर से उसी चेन के सामने पहुंची। एक बार फिर मुसलमान इस चेन को क्रॉस नहीं कर पाए। 1 साल तक मुसलमान बैठे रहे। ये जंग भी मुसलमान हार गए और मुसलमान यहां से वापस चले गए। अब आखिर 700 साल के बाद मुसलमानों को भी समझ आ चुकी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना एक इम्पॉसिबल काम है और मुसलमानों का यह ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यहां से आहिस्ता आहिस्ता हालात हमेशा के लिए बदलने वाले थे। कहा जाता है सुल्तान मुराद इस हार के बाद बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था और अब यह ख्वाब टूट चुका था। कहा जाता है सुल्तान मुराद अपने इस ख्वाब के बारे में हर किसी को बताता रहता था, अपने जनरल्स, मिनिस्टर्स और इवन अपने बच्चों को भी। लेकिन यहां से हमेशा के लिए हालात बदलने वाले थे, क्योंकि सुल्तान मुराद के इन्हीं बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद, जिसने बचपन में ही यह फैसला कर लिया था कि वो बड़ा होकर अपने बाप के इस हार का बदला जरूर लेगा। और जैसे ये शहजादा महमद सुल्तान महमद बना, सुल्तान महमद ने 2 लाख की फौज जमा की, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica. It's huge. This thing's a monster. और उस्मानिया सल्तनत की पूरी नेवी के साथ 5वीं बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दिया। सब्सक्राइब।